Hello my dear lovely students. I hope you all are well, fine, good and healthy. Okay, welcome back to your class. Okay, so do you know which lesson we are going to start today? Okay, you don't know? Okay, you wait, I'll tell you. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3. And do you know what is the name of the chapter? Come, I'll show you. The name of the chapter is The Seller of Wisdom. What is the name of the chapter? The name of the chapter is The Seller of Wisdom. Now, what do you mean by wisdom? Wisdom is a brain power which is given to human to judge whether the person is right or wrong. This is known as wisdom. So, in this chapter today we are going to learn more about wisdom. Okay. So without wasting much of our time, we will start. Okay, before starting, let me tell you one thing. When I will read the lesson, what you will do? You will look here and there. Okay? No, when I will read the lesson, you will keep your finger on the line. This will help you to know that where I am reading. Okay? So come, we will start our today's new chapter. Okay? Okay, my dear students. See page number 19. Chapter number 3, The Seller of Wisdom. You will keep your finger on the line. Now come, we will start our lesson. There once lived a short little preacher in a Turkish town. Now, short little preacher. Preacher means, preacher का मतलब क्या होता है? Preacher means the religious speaker. Preacher means वो इंसान को स्पीकर बोला जाता है जो अपने रिलीजन के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं प्रीचर. ओके, देयर वंस लिव्ड अ शॉर्ट लिटिल प्रीचर इन अ टर्किश टाउन. मतलब टर्किश टाउन में एक छोटा सा प्रीचर रहता था जो अपने रिलीजन के बारे में वो बताता है, उसका मतलब है प्रीचर. ओके, हिज नेम वॉज नसरुद्दीन होका. व्हाट वॉज हिज नेम? हिज नेम वॉज नसरुद्दीन होका. ओके, Nasruddin was a simple man who gave free advice to people. In turn, the people loved and respected him. So, his name is Nasruddin. What he used to do? He used to give free advice to the people. Okay? What he used to do? He used to give free advice to the people and people would love and respect him. People उसकी respect करते थे. Okay? One day, Nasruddin's wife came back in a bad mood from the public bath. Now, Nasruddin's wife. Now, she is Nasruddin's wife. ये नसरुद्दीन की वाइफ है. ये बहुत ही ज़्यादा बैड मूड में एक दिन नसरुद्दीन को मिली. She had gone there to have a bath and relax. Now, नसरुद्दीन की वाइफ एक बात लेने के लिए और रिलैक्स करने के लिए कहीं गई हुई थी. ओके, Unfortunately, the attendants kept asking her to move from one table to another. The attendants मतलब वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने नसरुद्दीन की वाइफ को वहाँ से मूव करने के लिए कहा. मूव करने के लिए कहा मतलब वहाँ से जाने के लिए कहा. क्यों जाने के लिए कहा? Come, we will see. They wanted to give the best ones to the wives and daughters of merchants. This annoyed the good lady a great deal. She returned home with the firm belief that one merchants were of any importance. Now, what she is saying, ये क्या बोल रही है कि जब वो वहाँ गई थी तो वहाँ के लोगों ने क्या बोले कि to move from cubicle to another. मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप चले जाओ. क्यों चले जाओ? Because they wanted to give best one to their wife. मतलब वो लोग उनकी वाइफ को एकदम बेस्ट बनाना चाहते थे. ओके, When Nasruddin Hoka came back home in the evening, he saw his wife's face. जब नसरुद्दीन वापस घर गया तो उसने क्या देखा? उसने उसकी वाइफ का फेस देखा. One look and he knew there was trouble in store. उसने अपनी वाइफ को देखते ही पहचान किया कि इनके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है. He had something wrong. He didn't have long to
wait for the news. Now long to wait for the news means नसरुद्दीन से अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है ये जानने के लिए. So he asked his wife. Okay my dear students, now we will turn the page. See your page number 20. Okay, here. You must become a merchant, she declared. She declared. मर्चेंट की वाइफ ने ये नसरुद्दीन की वाइफ ने नसरुद्दीन को क्या कहा, दैट यू शुड बिकम अ मर्चेंट. मतलब उसने एक मर्चेंट बनना चाहिए. मर्चेंट मीन्स व्हाट? मर्चेंट मीन्स जो काम करता हो. ओके, उसको बोलते हैं मर्चेंट, जो लेने देने का काम करता हो. ओके, शी डिक्लेयर्ड. व्हाट? एक्सक्लेम्ड नसरुद्दीन. अ मर्चेंट? आई डोंट हैव एनी मनी. Have you thought of that? Now what this Nasruddin is saying, that merchant मतलब कारोबारी वाला आदमी बनने के लिए I don't have any money, मतलब इसके पास, नसरुद्दीन के पास एक भी पैसे नहीं है काम करने के लिए. ये तुम्हारे को मालूम है ना? ये कौन बोला? नसरुद्दीन अपनी वाइफ को बोला. Now here, money or no money, said his wife firmly. If you won't become a merchant, I'll leave you. Now what his wife is saying, money or no money. वो क्या बोल रही है नसरुद्दीन की वाइफ, कि पैसे रहो या ना रहो. You want to become a merchant, मतलब आपको मर्चेंट बनना है, नहीं तो बनना है. Otherwise I will leave you, मतलब इसकी वाइफ इसको नसरुद्दीन को छोड़ के चले जाएंगी अगर ये मर्चेंट नहीं बना तो. नसरुद्दीन realized there was no use arguing with her. नसरुद्दीन को अभी समझ में आ गया कि अपनी वाइफ से झगड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है, मतलब वो किसी काम की नहीं है अगर मैं उससे बात भी करूँ तो. She would not listen to reasons. Very well, give me 24 hours to work out something. Now what Nasruddin is saying, that give me 24 hours for डूइंग समथिंग. मतलब नसरुद्दीन ये बोल रहा है कि मुझे 24 घंटे का टाइम दो कुछ काम करने के लिए. ओके, नसरुद्दीन होगा टॉस्ड अबाउट रेस्टलेस ऑल नाइट. नाउ नसरुद्दीन व्हाट ही हैज डन, टॉस्ड अबाउट रेस्टलेस ऑल नाइट. मतलब नसरुद्दीन पूरी रात सोच रहा था. क्या सोच रहा था? व्हाट वाज ही टू डू. व्हाट वाज ही टू डू मीन्स वो क्या काम करेगा अभी. The next morning, he set off early on his donkey. Now he set off early on his donkey means नसरुद्दीन अगले दिन सुबह सुबह अपने डोंकी पे, मतलब अपने गधे पे बैठ के कहीं जा रहा था. All through the hot day, he wondered about thinking. All through the hot day means पूरे दिन क्या बोलते हैं अपन, बोलते हैं ना कि बहुत धूप है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो तपती धूप में ही वंडर्ड थिंकिंग. थिंकिंग मीन्स वो सोच रहा था. सडनली हिज आईज फेल ऑन हिज लिटिल ग्रे डोंकी. ना सडनली मीन्स अचानक. अचानक उसकी आंखें गई अपने ग्रे कलर के डोंकी पे. ओके, एंड ही जम्प्ड अप इन एक्साइटमेंट. उसने अपने ग्रे कलर के डोंकी को देखा एंड ही जम्प्ड आउट इन एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट मीन्स वो क्या बोलेंगे अभी अपन एक्साइटमेंट को, कि वो खुशी के मारे डोंकी के ऊपर से कूद गया. मे बी ही कुड सेल द डोंकी एंड गेट सम मनी. ना उसके दिमाग में ये आया था नसरुद्दीन के कि वो डोंकी को सेल आउट कर देगा. सेल आउट कर देगा मीन्स मतलब डोंकी को बेच देगा और उसको बेच के पैसे कमाएगा. Who was thinking? Nasruddin. He rode to the market and sold his donkey to a man. He rode to the market. Rode means वो मार्केट की तरफ चले गया. क्या करने के लिए चले गया? अपने डोंकी को एक आदमी को बेचने के लिए. After much haggling, he got 20 gold coins for the animal. नाउ काफ़ी मकसद के बाद नसरुद्दीन को कितने मिले? 20 गोल्ड कॉइन्स. वाओ, नसरुद्दीन को 20 गोल्ड कॉइन मिले उसके डोंकी को बेचने के लिए. इट वॉज इनफ टू रेंट आउट अ स्टॉल इन द
market for a month. Now after getting the 20 gold coins, मतलब 20 gold coins मिलने के बाद what Nasruddin was thinking, now this gold coins are enough to set a stall, मतलब ये पैसे काफ़ी है मार्केट में एक स्टॉल डालने के लिए. He had no money left to get anything to sell. अब उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है वो 20 गोल्ड कॉइन्स है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी पेज नंबर 21. द नेक्स्ट मॉर्निंग सॉ नसरुद्दीन होका ओपन अ शॉप इन द मार्केट. अनलाइक अदर मर्चेंट्स ही हैड नथिंग टू सेल. नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब ये डोंकी को बेचने के बाद वो 20 गोल्ड कॉइन्स लेने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग नसरुद्दीन होका ने अपनी दुकान खोली. पर किस चीज़ की दुकान खोली? किसी भी चीज़ की नहीं, सिर्फ खाली एकदम दुकान खोल के शॉप में बैठ गया. अनलाइक अदर मर्चेंट्स, बाकी दूसरी दुकानदारों की तरह ये भी दुकान डाल के बैठ गया. ही हैड नथिंग टू सेल, दुकान डाल के बैठ तो गया नसरुद्दीन, लेकिन उसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो था. ओके. इंस्टेड ही हैड एन अर्दन पॉट इन वन कॉर्नर. सिर्फ उसके दुकान में एक मिट्टी का घड़ा था, वो भी एक कॉर्नर में था और कुछ भी नहीं था. एवरी डे नसरुद्दीन होका रोल्ड अप द शटर्स इन द मॉर्निंग एंड शट देम एट नाइट. हर दिन नसरुद्दीन अपनी दुकान का शटर खोलता है और शाम में उसको बंद कर देता है, लेकिन बेचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ शटर खोलता है और बंद कर देता है. His wife, like those of other merchants, now got special attention at the public bath. Now, his wife नसरुद्दीन की वाइफ को एक स्पेशल अटेंशन मिल गया. क्यों मिल गया? क्योंकि नसरुद्दीन मर्चेंट बन गया. मर्चेंट मतलब दुकानदार, रोज दुकान खोलता है, दुकान बंद करता है. तो इससे क्या हुआ, उसकी नसरुद्दीन की जो वाइफ थी उसको स्पेशल अटेंशन मिल गया. किसका स्पेशल अटेंशन मिल गया? पीपल मतलब लोगों का. Day after day he sat in his empty shop. He spent the day nodding at passers by and exchanging bits of news with those who stopped to chat. Now दिन ब दिन बीतते गए, लेकिन नसरुद्दीन अपनी दुकान खोल के बैठा रहा. वो सिर्फ उन लोगों से बातें करता था जो उसकी दुकान के सामने से जाते थे और वापस आते थे. वो सिर्फ बैठ के चैट करता था, बाकी बेचने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मिट्टी के पॉट के सिवा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस मच लेसन. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन. मुझे लगता है आपको आज का आधा लेसन समझ में आया. सी आई हैव एक्सप्लेन यू द हाफ लेसन. मैंने आपको आधा लेसन एक्सप्लेन किया है इन दिस वीडियो. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रेस्ट ऑफ द लेसन. इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपका बाकी का लेसन एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर. गॉट इट? सो stay safe, stay home, stay healthy. I'll see you in the next video. Okay, till that time take care. I will send you the PDF of your homework. आपके होमवर्क का आज का PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी. Okay, now take care. Have a good day. Bye.